SSC, mains, okay, time and work. So time and work concept, we'll see some problems. A can do a piece of work in 32 days, okay, B is doing the same work in 36 days. So if they work together for 12 days, how much of work remains? That is the question. So 32 and 36, first you needed to take LCM. So how you take LCM here? Here it is 36 is 4 into 9 and this is 4 into 8. Okay, 4 is common, 8 for 8 is 32, 32 into 9. That way also you can go, just like how it is, 4 is common into 8 into 9, right? 8 into 9. So here you will be getting 9 units LCM, here you will be 9 units, here you will be getting 8 units. So A is having how many units? 9 units to make the LCM. B is having 8 units. Now when they're together, we talk about A plus B together will have 9 plus 17 units. So 17 units. Okay, when the two together, how much is this number? 32 into 9 if you go with. So it's 1 day work. 1 day work will be, so 1 day work will be 17 upon 32 into 9. But I want the work for 12 days. So 12 days will be, I'll multiply with 12. So here 4 3s and 4 8s and 3 1s, 3 3s. 17 upon 24 is the work done. This is not the option. Remains means 1 minus 17 upon 24. So 24 minus 17, 7 by 24. So this is the work remains. So let's take the second one. Let's go a little slow for a good understanding. A is performing 50% job in how many days? 16 days. Okay. So B can do the same, but 1/4 of it job in how many days? 24 days. So how many days can they do 3/4 of job together? So I want A plus B together. So first of all, 50% job in 16 days, यानी कि half of the job 16 days में करता है, तो complete 100% कब करेगा? 100% करेगा, 2 इधर ले लिया तो 32 days. What about B के 100% काम, पूरा काम कब करेगा? 4 इधर ले लिया, 24 into 4 यानी कि 96 days. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना 96 आएगा. तो इन दोनों में क्या है? 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा. ये 3 इंटू, इसका मतलब 96 ही एलसीएम है. सो ये 3 होगा, ये 1 होगा. ठीक है, एलसीएम तो हमने सिंपल ले लिया. आप जरा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आएगा. तो A प्लस बी का कितना यूनिट्स है? अभी 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 यूनिट्स बन रहा है A प्लस बी का. तो कितने दिन में हम काम कर सकते हैं? तो A प्लस बी कंप्लीट्स इन हाउ मेनी डेज? सो टोटल अपने 96 पे हमें निकालना है, डिवाइड करना है 4, यानी कि 24 डेज में you can complete job with A plus B as working together. But I don't want the complete job, 3/4 of it. 3/4 of it means 6 3s are 18. So 18 days we will complete 3/4 of the job. I hope it is clear. Next, now here 1/4 of job 10 days. So P is completing 4, ऐसे directly ले लेंगे तो 40 दिन में खत्म होगा. Q is completing 40% job in 40 days. तो 50% जॉब कितने दिन में होता है? 50 डेज में हो जाएगा ना, ऐसा सिंपल लॉजिक. तो 100% जॉब, तो ये बन जाएगा 100 डेज. ओके, 1/3 जॉब 33, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 39 डेज में ये खत्म कर रहा है. कौन है ये? R. नाउ व्हाट अबाउट S? S इज टेकिंग 37.5% इन 17 डेज. तो इसको 2 गुना कर लेंगे तो 75% जॉब 34 डेज में होगा. और 100% जॉब आपको 100 डेज से ज़्यादा नहीं हो रहा है. लेफ्ट सफिशिएंट मतलब टेकिंग मोर टाइम. लेफ्ट सफिशिएंट मीन्स
taking more time. So who is taking more time? So Q is taking more time. So Q is your answer. Now we'll have one more question. If A alone can do a piece of work in 72 days, A 72 days में काम कर रहा है, B alone how many days B alone can do, ये find करना है. If they together का मतलब क्या है? A plus B साथ में 40 दिन में काम करते हैं. तो ठीक है, 42 और 72 और 40 इन दोनों की अगर LCM की अगर हम बात करते हैं तो क्या LCM आएगा इन दोनों का? ठीक है, ये 4 इंटू क्या होगा, ये 4 इंटू 4 1 ज़ा 4, 32 मतलब 4 18 ना, 18 तो 4 इंटू 10 यानी कि 4 कॉमन है. ठीक है, 4 कॉमन है इसमें, तो ये 18 और 10 में भी हम कर सकते हैं 2 इंटू 9 और या 2 इंटू 5. सो 2 भी है, 9 भी है और 5 भी है, बराबर. तो 8 9 8 5 4 4 8 5 ज़ा 40, 49 ज़ा ये बनेगा 360 यूनिट्स. ओके, LCM ऐसा भी कर सकते हैं. तो 72 में 360 करना है तो 5 बार होगा, देख लेना. 72 8 9 ज़ा 72 बराबर 72 5 बार होगा, ये 5 यूनिट. 40 मतलब ये 9 यूनिट. तो A प्लस B आपको 9 यूनिट्स आ रहा है, ये आपको 5 यूनिट आ रहा है. तो B कितने यूनिट होगा? 9 में से हमें निकालना है 5 यानी 4 यूनिट. 4 यूनिट B का होता है. तो कितने यूनिट टोटल है? टोटल यूनिट 360 है, B का 4 यूनिट है. तो कितने दिन में B कंप्लीट करती है? B कंप्लीट करते हैं 90 डेज में. So very simply we got the 90 days B alone. Oh, this is the last question for this slide. Okay, slowly we will go. Today we have only 5 questions. Tomorrow may turn out to be 10 to 15 questions like that. Slowly we will learn how to solve. A can paint a house in 55 days. A कितने दिन ले रहा है? 55 दिन ले रहा है. B कितने दिन ले रहा है? 66 days ले रहा है. Along with C, यानी कि A प्लस B प्लस C जोड़ेंगे तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन है C कितने दिन में काम करता है? तो पहले इन सब का यूनिट्स फाइंड करना है, यानी कि इन तीनों का हमें LCM भी लेना है. तो 55 66 और 12 के LCM, अगर जब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो LCM के घबराने का नहीं है. ये 5 इंटू 11 है, ये 6 इंटू 11 है और ये 6 इंटू 2 है. ठीक है, ये कॉमन क्या है? अभी 5 है, 11 है, 6 है, बराबर. 5 है, 11 है, 6 है, फिर 2 है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे. एक ही बार है तो एक ही बार लिख लेते हैं. तो दिस इज़ योर LCM. 5 और 11 तो है तो 12 नहीं है. 6 और 11 है तो 10 नहीं है. 6 और 2 है, ये 55 नहीं है. तो ठीक है, तो ये हम क्या करने वाला है? तो ये होता A प्लस बी अपना 22 और ये A प्लस बी प्लस C 55. इस 55 में से अगर 22 माइनस करेंगे, क्यों माइनस कर रहा है? तो क्योंकि मुझे C का चाहिए, तो A और B जोड़ दिया तो हमें आता है 33. सो दिस 33 यूनिट्स इज फॉर C. इस 33 यूनिट्स हमें किस में डिवाइड करना पड़ेगा? ये टोटल यूनिट्स है. दिस इज टोटल. ओके, वट एवर द LCM यू गेट. So C alone can do, I think you can answer this easily, 5 into 11 into 6 into 2 upon 33. 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 into 5 यानी 20. So that's all for today. Very easily we answered.